Namaste learners. Now I am going to explain about the electric current, resistance, resistivity and dip velocity. And now I am start with the electric current. What is electric current? Electric current is the rate of flow of charge. Rate of flow of charge through a cross section area, okay, and this is called I is equal to rate means dq by dt, the cross section area, and this is the any conductor. Suppose that this is the any conductor, this one is the conductor, and this is the cell, representation of cell, and this represent the higher potential, as you know, and this is the lower potential, and sometimes it considered as zero potential. This represents the higher potential, and this one is the lower potential. Represents, this is the representation, and or zero potential, V equal to zero potential, for numerical purpose. In previous class I have discussed these things, and due to this potential difference there is a electric field. Here is plus, here is minus. There is a electric field set up across the electric field, across the conductor. This is the plus, higher potential, lower potential, electric field. As you know, electric field is equal to minus dV by dx dr, as you know. Then the electric field is in direction where potential is decreasing, gradient is decreasing, dV minus dV by dr, okay, and that's right. And in this case the force on electron moves in this direction. Force of electron moves in this direction because F equal to, as you know, F equal to minus EE. Electron is negative charge, then force is acted on electron opposite to the electric field, and that's why electrons moves from negative to positive potential, lower potential to higher potential. Means electron moves from lower to higher potential, It is clear. And conventional direction of current is in the direction of flow of positive charge. And as you know, positive charge is nothing during the flowing, only the ions, positive ions in electrolyte, okay, as you know, in electrolyte maybe. Conventional direction is always positive, flow of positive charge, means electron moves in this direction. Current moves from higher to lower potential. Current flows from higher potential to lower potential. It is very clear, quite clear. Lower potential. And as discussed previous, only electron is responsible for the current. Means here is definition, the rate of flow of charge across any section. Suppose this is a section, then in 1 second how many electrons, how many charges flow from this in this direction, okay. Then dq by dt, and direction is this. It is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? It is a scalar quantity. Why?
a scalar quantity. Whereas it has both. It has direction and magnitude both. It has magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Okay? Just like suppose from this one is I1, from this it is the I2, and this is the I3. I3 is equal to I1 plus I2, and this is the theta. Then the current in this section is I3 equal to I1 plus I2 due to the conservation of charge. Due to conservation of charge. Follow the conservation of charge. Conservation of charge. And that's why I3 is I3 should be equal to I1 plus I2. And if it is vector quantity, then it must follow I3 is equal to I1 square plus I2 square plus 2I1 I2 cos theta. Means this law is not applicable here. This is not applicable. This is not applicable. This one not applicable. Not applicable. Hence it doesn't follow. It does not follow which rule? Parallelogram rule or triangle rule of addition. Triangle rule of addition. Triangle rule of addition. This is very important. And one thing is more. I is the dot product of J vector dot ds vector, and J is current density. One more answer is this: J current electricity is a scalar quantity because it does not follow the parallelogram rule. The first point. The second point is current electricity is the dot product of current density and area vector, and that's why current is a scalar quantity. There are two reasons here I have discussed. One is the dot product of two vector quantity, that's why current is a scalar. And second is if it is a vector, then I1 and I2 and this is the I3 current, and I3 is the sum of I1 plus I2 due to the conservation of charge. But if it is vector, then it must follow the parallelogram rule, and that's why current is a scalar quantity. And as unit, what is the unit? Unit is, as you know, charge is coulomb per second. It is coulomb per second. Coulomb per second. And if you want to define means 1 ampere equal to 1 coulomb 1 second. As you know, 1 coulomb charge flows in 1 second across any cross section area, then it becomes 1 ampere current. But it is not a SI definition. SI definition will be discussed in next chapter. Okay, and it is not SI unit. Just you remember, 1 coulomb charge flows in 1 second across through any cross section area, then that current is called 1 ampere current. I think it is more clear. And the second thing is biot, CGS unit. This is the SI unit and this is called ampere. It is also called ampere. And one thing, CGS unit is current is equal to 1 coulomb per second, 1 coulomb, coulomb per second, 1 is not necessary, and 1 coulomb equal to 1 by 10 EMU of charge, EMU of charge by 1 second. Okay, then it is called 1 is also mentioned here, don't worry. And then 1 by 10 is, this is also called AB ampere. AB ampere means 1 by 10 AB ampere. 1 by, this is the ampere. This is the ampere, or this is AB ampere. Or it is called biot. It is called biot. This is called biot. Biot. The CGS unit and symbol is BI. This is more clear. 1 ampere is equal to 1 by 10 ab ampere,
and it is also called biot. Means 1 by 10 biot. Actually, this one is also here. Charge in motion, then the unit of charge you must consider in series unit EMU of charge. 1 coulomb is equal to 1 by 10 EMU of charge or 1 by 10 AB ampere, AB coulomb. That is AB coulomb, and coulomb by second is ampere. Then 1 by 10 ampere. Okay. According to magnitude and direction, there are two types of current. One is DC. Electric current is of two types. One is DC and other is AC. This is the AC current, and this is the DC, direct current. DC means direct current, and AC means alternating current. The magnitude of alternating current is periodically changes. Okay, the magnitude and direction changes periodically. The formula is I equal to I naught sine omega t. This is and the graph of this current is as like this. This is the current, this is the time axis, this is the I, positive I, this is the negative I, okay, and this is the positive sign and this is the negative sign. As you see, as time passes, then the magnitude of current is increasing, and after the maximum value, this is called peak current, I naught. This one is the I naught, peak current. It is the peak current, maximum current, and after getting the peak current, it decreases and finally becomes zero, and after the zero it again increases but in a opposite direction, and again it reaches the maximum point, peak current, and after that it is decreases, and that's why it is alternating current. The magnitude and direction changes periodically, and that's why it is called alternating current. And direct current, the magnitude and direction remains constant. Direction is constant as time passes. The graph of this is as like this. This is the time axis, this is the current, or you also say about the EMF is also the same result, and this is the E or I is same, constant. This one is the constant. There is no change in the graph, and that's why it is called direct current. Source of DC current is first of all battery or cell. This one is the battery or cell, or DC dynamo. One is the DC dynamo. Okay, and the source of AC current is AC dynamo, AC generator or dynamo. Okay, this is the source of alternating current is AC generator. Source of direct current is DC dynamo or battery or cell. So there are two types of current, DC current or AC current. Okay, and now the effect of current. There are three effect of current. The first effect is thermal effect. As you understand with the name, this phenomenon produces the heat.
When a current passes through a resistance, then heat is produced, known as thermal effect or heating effect. And the second thing is magnetic effect. Magnetic effect means when current flows through a coil, then magnetic field produces. Magnetic field produces, known as the magnetic effect. And third is the chemical effect. Chemical effect. And chemical effect, I think you studied in chemistry. Electrolysis. Electrolysis is the electroplating also. Electrolysis, electroplating, these all are studied in chemistry. Electroplating. Okay, then thermal effect and magnetic effect we will discuss, and chemical effect in chemistry. One device is a rectifier. Rectifier is a device, and second is the inverter. A rectifier is a device which converts which converts AC current to DC current. A rectifier. And inverter is a device which converts DC to AC. This is rectifier will be studied in chapter Semiconductor Devices. And one is the charge carriers. Charge carriers is different in different types of material. Just like if you consider the metallic wire, then charge carrier is different. If you consider the semiconductor, then charge carrier is different. And if you consider the discharge tube, then charge carrier is different. If you consider voltmeter, then charge carrier is different. In metallic wire, generally electrons are charge carriers. Electrons means free electron. Free electron, actually it is a valence electron, and it moves due to the thermal velocity or apply the electric field, but it does not escape from the metal surface, and that is called free electrons. Free electrons, metallic wire. Semiconductor, electron and hole pairs. This is called electron and hole pair. In discharge tube, there is a positive ions and electrons. Positive ions and electrons in discharge tube. And in voltmeter, positive and negative ions. Voltmeter. And this type of things is the charge carriers in metallic wire, in semiconductor, in discharge tube, and in voltmeter. One more thing. During the flow of charge or current, conductor remains neutral. इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज या नेट चार्ज डेवलप नहीं होगा. सेकेंड, current is same when flows in different cross section. As for example, suppose a current is flowing as like this, I current, and suddenly the surface area changes, cross section area changes, then here current I, then in this conductor is also I, and here is also I, and there is no dependence of cross section area in this case. I have taken one topic which is generally misconception among us, the effect of current on a human body. The term is electrochemical
electrocution. Electrocution means to kill someone causing electricity to flow through their body. किसी बॉडी में अगर करंट फ्लो करता है तो व्यक्ति डेथ कर जाता है, वो हाई करंट और उस समय के बाद। लेकिन करंट का भी वैल्यू हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि हम लोग का बॉडी का रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो है रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये लगभग 1000 ओम में रहता है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रेसिस्टेंस है। और बैटरी से हम लोग करंट नहीं लगता है, छोटा मोटा 1.5 वोल्ट बैटरी से। इसका रीजन यही है कि रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है कि माइन्यूट करंट फ्लो करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जनरली सेल जो है डीसी का हम लोग को करंट नहीं लगता है, जो रेसिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग एसी करंट को छूते हैं तो ये ज्यादा फैटल होता है। तो अब हम समझेंगे मिसकंसेप्शन क्या है। पहला मिसकंसेप्शन, जनरली आम बोलचाल में बोलते हैं कि वो करंट अपने में वो चिपका लेता है, मतलब जस्ट लाइक एक करंट किसी को पकड़ा, वो छूट नहीं रहा है उससे, तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कि वो चिपक गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि करंट कोई ऐसा नहीं कि जादू से चिपक जाएगा या कोई मैग्नेटिक सबस्टांस चिपक जाएगा, नहीं। जब बॉडी में करंट फ्लो करता है तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जो नर्वस सिस्टम हम लोग का है, करंट फ्लो करने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं आयंस के फ्लो करने से ही काम करता है वो, तो उसमें इतना करंट फ्लो कर जाता है कि वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाएगा तो हम लोग को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वही जब आउट ऑफ वर्क हो गया तो ऑब्वियसली है कि आप कोई एक्शन कर नहीं पाएंगे, तो आप वहां से हट नहीं पाते। बस इतना ही बात है कि पहला कि नर्वस सिस्टम उसका क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। दूसरा, जनरली कहा जाता है कि हीटिंग इफेक्ट के कारण बॉडी क्या होता है, मतलब इतना हीट हो जाता है कि वो डेथ कर जाता है आदमी। ये भी गलत बात है। हीटिंग इफेक्ट वहां कुछ नहीं है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ये कर सकता है कि स्किन को जला सकता है या मसल्स को जला सकता है, लेकिन उसके कारण से डेथ नहीं हो सकता है। डेथ होने का रीजन है नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट जो है, एक तरह से इरोटिक हार्ट बीट कहते हैं इसको, इरोटिक हार्ट बीट, इरोटिक हार्ट बीट। ये 2 कारण है डेथ होने का, हार्ट बीट, है ना। ये हुआ डेथ होने का कॉज। डेथ होने का कोई कॉज पूछे क्या है, तो इरोटिक हार्ट बीट उसका जो है इरोटिक हो जाता है, मतलब वो एकदम से सडन से बहुत बढ़ जाएगा या बहुत घट जाएगा, डिपेंड करता है कि उस समय क्या होता है। लेकिन हीटिंग इफेक्ट तो कतई नहीं है ना। हीटिंग डेथ कॉज्ड बाय हीटिंग इफेक्ट इज मिसकंसेप्शन। डेथ कॉज्ड बाय हीटिंग इफेक्ट इज मिसकंसेप्शन। हीटिंग इफेक्ट इज मिसकंसेप्शन। तो ये क्लियर बात हो गया। 2 चीज हम लोग क्लियर किए। एक तो पहले कि डेथ जो कॉज होता है वो हार्ट बीट के, इरोटिक हार्ट बीट के कारण डेथ होता है, ना कि हीटिंग इफेक्ट से। दूसरा चीज, हम लोग उसमें सड़ जाते हैं, छूटते नहीं है। उसका रीजन ये है कि नर्वस सिस्टम हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके वजह से वो हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते अपने ऑर्गन सिस्टम को, जिसके वजह से करंट के जो सोर्स है उससे हम दूर नहीं जा पाते। ये वजह है करंट लगने के बाद या करंट में, कंडक्टर में टच होने के बाद हम लोग जो है इफेक्ट ऑफ करंट को इस तरह से फील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन। This is very important to understand the magnetic phenomenon. Okay, and suppose this is the path of charge particle. Suppose this charge particle moves with velocity v, okay, and this is the center and this is the radius. R is the radius of circular path. Radius of circular path. V is the velocity of electron, velocity of charge particle, okay. Then I is equal to Q by T, and suppose
T is considered as time period, okay, one time period or time period, and this will equal to 2 pi r v, because this one is s equal to Vt, then s t equal to s by v. Then formula becomes I is equal to q by t, and then q by 2 pi r by v. Then I is equal to qv by 2 pi r. This is the formula. As you know, the formula of angular velocity is this is the angular velocity. The formula of angular velocity is omega equal to angular velocity, and then formula is v equal to r omega, and omega equal to v by r. As you see, v by r is omega, then equal to q into omega upon 2 pi. Okay, and this one is also equal to 2 pi nu. Omega is also equal to 2 pi nu, and that's why I is equal to q omega by 2 pi, means q 2 pi nu by 2 pi cancel, then I equal to q into nu, means charge, amount of charge, current is equal to amount of charge into frequency, also charge into amount of charge into frequency, amount of charge into frequency. As you know, frequency is the rotation of the number of rotation per second. Frequency is the number of rotation per second, and time period is the time taken to complete one rotation. And next topic is current density. Current density, it is a vector quantity, capital J. It is a current density is equal to J equal to current per unit area, amount of current per unit area, amount of current per unit area is called current density. It is a vector quantity, and direction is along flow of current. Suppose a conductor, this is the conductor and this is the area, then current and direction both in same direction. Okay, this is the direction of current. Then J equal to I by ds. Ds is the symbol of a small area. Okay, but area as like this. This is the area is always perpendicular to the surface. This is the surface, then it is perpendicular, and current in this direction. Angle between these is theta. Theta is the angle between I and ds, and then this becomes J equal to I is the amount of current, and this is equal to ds cos theta. Then I is equal to J into ds cos theta, and it becomes I equal to J dot ds. This is, and this is the dot product of two vectors, hence I is scalar quantity. I is scalar quantity, J is vector quantity, and a small area is also vector quantity. One example is here for the application of current density, and this is suppose here I current is flowing, and here is area, surface area is S1, and here is surface area is S2, and here also I. But suppose this one is J1 and this one is J2, and J1 is equal to I by S1 and J2 is equal to I by S2. And as you see, S1 is greater than S2, and therefore J1 is less than J2. मीन्स J2 ज्यादा है, इस पोर्शन पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, इस पोर्शन पे करंट डेंसिटी क्या होगा, कम होगा. The next topic is drift velocity. Drift velocity is the result of two processes. One is the collision and other is the acceleration. The two processes, collision and acceleration, result in a dynamic equilibrium in which and the uniform average velocity
is achieved by the electron. This is uniform velocity. And before I am going to discuss the drift velocity, first of all, you must know about the thermal velocity of electron. Thermal velocity or thermal speed of electron. As you know, an electron in a conductor moving here and there with very high speed. From one point to other point, electron moves very high speed. Thermal velocity is equal to, this is 3 kT by m, where 3 kT by m, where k is Boltzmann constant, okay, and this is equal to 1.38 10 to the power minus 23 joule per Kelvin, and T is absolute temperature. Here I consider 300 Kelvin, and m is the mass of electron. As you know, mass of electron 9.11 10 to the power minus 31 kg. And the value of this velocity is very high. It becomes 10 to the power 5 approximately. It is equal to 10 to the power 5 meter per second. This is the thermal speed of electron. And the drift velocity is the velocity of same electron in the presence of electric field. The average velocity or uniform velocity, drift velocity is the uniform velocity. This is the uniform velocity acquired by free electrons inside a metal by application of electric field. Means, if you consider a conductor as like this, okay, the conductor is connected with a cell. This is the cell, representation of cell, and as you know, plus higher potential, lower minus potential. This is the higher potential, this is the lower potential, and electric field is set up between the conductor due to the higher potential and lower potential. As you know, E is equal to minus dV by dr. Okay, in the direction of electric field, potential is decreasing. Means this is a higher potential, lower potential. Then electric field decreases in this direction. Means the force on electron is in this direction, because this is the electric field here, and as you know, F equal to minus EE, means force is in opposite direction. Collision means the first process is collision. When a electron moves from one atom and collides to the ions of the other atom, this is the collision. And the force here, force is as a Newton's law, Newton's second law, as you know, Newton's second law, F equal to ma or F equal to E. Okay, from this result, from equation 1, from equation 2, then from equation 1 and 2, and acceleration is equal to E by m. If you consider vector form, then minus E by m. If you consider vector form, then E means charge on electron, charge on amount of charge. E means amount of charge, means 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, or m is the mass of electron. Okay, and F equal to ma, and this is the F equal to U. From this equation, A equal to EE by m. आप कंसीडर करो कि एक सोडियम का हम रोड ले रहे हैं, इसमें हम ज्यादा नहीं 3 आइटम को शो कर रहे हैं. एक आइटम यहाँ सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम. इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. जब इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयन हो जाएगा. और ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इसके साथ कोलिजन करेगा. इसी दोनों के बीच के जो कोलिजन टाइम होगा, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. और दिस इज ड्रिफ्टेड विद द फोर्स ऑफ दिस F equal to QU. By the force F equal to QU, the electron drifted and collided with the other atoms, and this
time, the time taken between this collision is called relaxation time. And there are so many items present inside the sodium rod, then every time T1, T2, T3 and calculated, and the average time is known as average relaxation time. Average relaxation time. Relaxation time. Now the time to derive the equation of drift velocity. Initially there is no current. Initially zero. Initially there is no current. Initially there is no current. There is no current in conductor. In conductor. It means average velocity. Initial average velocity is zero. The bar indicates the initial average velocity. Means u1 vector plus u2 vector and so on, un vector by n becomes zero, because there is no current initially. After the applying force, an electric field, after applying electric field across conductor, okay, then electron drifted. Drift मतलब होता है ससरना, घसकना, जो भी उसको कह लीजिए. Drifted means v1 equal to u1 plus a into tau 1. Similarly, v2 is equal to u2 plus a vector tau 2, and so on. Vn is equal to un plus a tau n. By definition, drift velocity is the average velocity, means v1, v2, v3 and so on, vn by what? N. Okay, I need more space, and that's why this one is equal to u1 vector plus a vector tau 1, u2 vector plus a tau 2, okay, and so on, un vector plus a tau n upon n. This is. And now the value of drift velocity is, the equation of drift velocity is just Vd is equal to u1 vector separated, u2 vector, u3 vector and so on, un vector upon n plus a1 is common because in all a1 is here, and tau 1, tau 2 and so on, tau n by n is there, and Vd is equal to, this is 0 from the equation, this equation 0, and this is a and tau. As you know, a vector tau, then you may remember this, or main formula is Vd equal to, if in vector form, then minus e by m into tau. This is the equation of drift velocity, and drift velocity is always opposite to the electric field. Electric field in this direction and drift velocity in this direction. This is a very important equation. Vd equal to minus ee by m into tau. Tau is the average relaxation time. This is the average relaxation time. The next topic is relation between electric current and drift velocity. Electric current and drift velocity. And for this purpose, I again consider a conductor of length L, cross section area A, length is L, and one is important, number of electron per unit volume. This is very important. Then total number of electrons, capital N, total number of electrons is equal to
N into volume, total volume. It means NaL, and Q is the charge of N. कितना चार्ज हुआ? The Q into Na, charge means what? Q equal to Ne. This one is the NaEl. This is total amount of charge. And when current is applied, cell is attached with this conductor, then drift velocity is actually uniform velocity, considered as uniform velocity. Drift velocity is considered as uniform velocity. And time taken to cross from the negative end to positive end, then T equal to L by Vd. This is the T. Then current becomes I equal to Q by T, and as we calculated NaEl by time is L by Vd, then L by Vd. L and L cancel out. This is the major relation between I equal to, you must remember, I equal to ANEVD. This formula. The relation between current and drift velocity. This comes from S equal to Vt for the uniform motion, means L is the length, and the time taken to cross electron from here to here, then T is equal to L by Vd. This is the relation between current and drift velocity. If you put the value of Vd, then I becomes ANE, and this one is E by M into tau. Then you may write the formula of I is here also. I is equal to ANE square E by M into tau. This is also a formula of I. But you must remember this formula, I equal to ANE Vd. And the next topic is mobility of electron. It is the ratio of, mobility means mu. It is the ratio of Vd by E. This is the mobility of electron. Mobility of electron or electron mobility is defined as the drift velocity acquired per unit strength of electric field is called electron mobility. And the formula of this is E by M into tau by E. This one is E by M into tau by M. Then cancel out E and E. Then electron mobility is E tau by M. This is the electron mobility, mu or E. And the unit is, suppose that we want to find the unit of this. Then this is the time, second, this is the mass, then kg, and this is the coulomb. Okay, coulomb second per kg, or one velocity is also here, meter per second, and this one is the volt per meter. Then the unit also becomes meter square per second per volt. You may define also meter square per second per volt, or coulomb second, coulomb, E for coulomb, T for tau for second, and mass for kg, the coulomb second per kg. And now the topic is most common topic, Ohm's law. Then I will discuss Ohm's law. Everyone know about this, but it is my duty. Ohm's law. At constant temperature and given physical quantity, physical condition, at a given physical condition, the potential difference is the potential difference across a conductor or resistor, or conductor, is directly proportional to
current flows through it. Current flows through it. This is called Ohm's law. Just like consider a circuit, as you know, this is the resistance, this is the cell, this is the key. All you have learned in class 10. This is the ammeter, this is the voltmeter, and as you know, this end is positive, this is negative, and again positive, again negative. Okay, this way. And current is I. Here is also I, and this one is. And the potential difference in this case, V is directly proportional to I. According to the Ohm, V directly proportional to I, and that's why V equal to IR, where R is proportionality constant. Proportionality constant known as resistance. Its SI unit is ohm. Ohm. The symbol is like this. The main thing is study the graph of this. Then if we draw a graph for this, then it becomes a straight line, as you know. And the slope of this graph, if it is I and this is the V, then slope of delta V by delta I. Suppose this is the delta V, delta I, then tan theta is equal to, slope is tan theta, means delta V by delta I. It gives R, resistance. Slope gives the resistance. And someone gives two materials as like this. Suppose that this material and this material A and material B, and ask which one has more resistance. Someone is asked, then you must find the slope. This is the theta 1, this is the theta 2, and as you know, theta 2 greater than theta 1, and then tan theta 2 greater than tan theta 1, and that's why the material Ra has more resistance than material Rb. And if it is reversed, suppose that someone reverse the axis, then V and I, then your answer is also reversed. Why? Because the slope becomes, the theta is, tan theta is what? Tan theta is delta I by delta B, and this is 1 by R, and actually cot theta equal to R. Then if it is theta 1 and then theta 2, here theta 2 is greater than theta 1, then cot theta 2 is less than cot theta 1, and that's why the material having the resistance Rb is greater than Ra. The answer is reverse. Then this is the important point. At one thing is also I want to discuss, a material which follow Ohm's law known as a ohmic conductor, and a material does not follow Ohm's law called non-ohmic conductor. The non-ohmic example of non-ohmic conductor, non-ohmic conductor. Semiconductor devices. Okay, just like a PN junction diode, transistor, these all are not follow the Ohm's law, but it follows the relation V equal to IR. ये सही है, ये रिलेशन है, ये बेसिक रिलेशन है, ये फॉलो करेगा V इक्वल टू IR, रिलेशन फॉलो करेगा, डायरेक्टली नहीं. ये बात नहीं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, ये नहीं फॉलो करेगा, लेकिन ये रिलेशन फॉलो करेगा.
एक बात को बहुत माइंड से समझिएगा, लेकिन वहां पे कैसे फॉलो करेगा हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ये फॉलो करेगा कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन अप्लाइड करके ये फॉलो करेगा, लेकिन ये नहीं फॉलो करेगा। क्यों नहीं करेगा कि जब वहां पढ़िएगा आप तो आपका मान लीजिए कि V है, ये I है, तो जो अभी स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं वहां ये कर्व लाइन हो जाएगा, कुछ ऐसा लाइन हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ओमिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो होता है इस तरह से ग्राफ बनाता है, इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये जो पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर जो कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। Now the topic is factors affecting resistance, and resistance is directly proportional to length. As you know, resistance is inversely proportional to area, cross section area, and depends upon temperature and depends upon material also. Okay, this one is means from this equation, as you know, we can write this one is directly proportional to L by A, and that's why it is rho L by A. And as you know, rho is called proportionality constant, proportionality constant, and known as resistivity. Also it is called a specific resistance. It is called a specific resistance. Its SI unit. This is rho is equal to what? Rho is equal to RA by L, and this one is ohm. This one is meter square, then meter cancel, and then it becomes ohm meter. The unit is ohm meter. And the definition of resistivity is, actually resistivity is RA by L. If consider A is unit and L is also unit, both are unit considered, A and L, then resistivity is resistance. Resistivity is the resistance of unit cross section area and unit length of a conductor. एक बात ध्यान देने का है, जब हम एरिया और इसको यूनिट मान लिए तो रो इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि लेंथ को और एरिया को फिक्स कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेसिफिक। एक बात ध्यान रखिएगा। और इट डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज अपॉन शेप एंड साइज। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स upon only on material and temperature. It does not depend upon shape and size. This is, and we will discuss more for the resistivity in next topic. And in this case, the resistance is directly proportional to length. Means length is increases, resistance is increases. That's why a rheostat is a device. Rheostat is a device which is variable resistance. It is also called variable resistance. It is called variable resistance. Means a number of turns, just like a device has having the more number of turns. This is the resistance wire, and just one end is touching from the device resistance. If you want to measure the resistance from this and this, then resistance is suppose R1,
and if you touch the point from this to this, then the resistance becomes R2. This one is, and the number of turns increases, length increases, and that's why R2 is greater than R1. एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें रेसिस्टेंस वायर इस तरह से लपेटा होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर इनिशियल टाइम में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजरमेंट कीजिएगा तो उसको मान लेते हैं कि ये R1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर कीजिएगा तो मान लेते हैं कि R2 है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा केस कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे कि आप लोग 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है किसी वायर में, तो ऑब्वियसली वो मोटा वायर होगा। मोटा वायर क्यों होता है, कि वो थिक वायर होता है। थिक क्यों होता है, थिक इसलिए होता है कि उसका रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और रेसिस्टेंस को लो करेगा, ताकि मोर करंट क्या करे, फ्लो करे उस वायर से। इसलिए अगर करंट का वैल्यू ज्यादा होना है तो उसको थिक वायर रखेंगे, थिक वायर रखेंगे, और जब आप करंट कम रखना चाहते हैं तो अब उसको आप थिन वायर से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब कितना थिक होगा, कितना थिन होगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे और फिर आपका इंजीनियरिंग पे। चलिए ये तो हो गया। एक और बात कि रेसिस्टिविटी जो होता है, जनरली एक डाटा दे देते हैं कि अगर कंडक्टर होगा तो रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर में होता है। अगर सेमीकंडक्टर का देखिएगा, सेमीकंडक्टर का, तो ये लगभग 10⁻⁻4-3 से लेकर के कुछ 100 तक भी हो सकता है। लेकिन अगर इंसुलेटर का देखिएगा आप तो इसका वैल्यू 10⁻16 तक जाएगा। ये है इंसुलेटर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a material which is insulator of 10⁻, whose resistivity is 10⁻16 ओम मीटर, है ना। तो रेसिस्टिविटी के आधार पर भी आप मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स डिपेंडिंग द रेसिस्टिविटी। बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड है, फैक्टर्स डिपेंडिंग द रेसिस्टिविटी। या एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ a stretched wire, a stretched wire। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर लिए हम, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है। इसको हम स्ट्रेच कर दिए, कितना स्ट्रेच किए, तो n टाइम स्ट्रेच कर दिए। तब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, जब हम लोग पढ़े हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, कब ये लॉ होगा, जब A इक्वल टू कांस्टेंट लीजिएगा। ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, कब, जब L कांस्टेंट लीजिएगा। ये ध्यान रहना चाहिए, ये तभी लागू होगा जब A कांस्टेंट हो, ये तभी लागू होगा जब A कांस्टेंट हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि आप इसको स्ट्रेच कर दे रहे हैं, तो इस केस में L है और A है, लेकिन इस केस में एरिया तो वैरी कर गया, लेंथ वैरी करने से एरिया भी वैरी कर गया। तो करना क्या है इसको, तो सिंपल सा है कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R, और इसका रेसिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, R डैश हमको निकालना है, लेकिन रेसिस्टिविटी तो हमको मालूम है। रेसिस्टिविटी तो इस केस में भी रो है और रेसिस्टिविटी इस केस में भी रो है। क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए रेसिस्टिविटी दोनों का सेम ही है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या करता है, m1 इक्वल टू m2, और डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहां भी हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चूंकि डेंसिटी सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो जनरली आप लिखिएगा V1 इक्वल टू V2। अब V1 वॉल्यूम को आप जानते हैं कि वॉल्यूम को लिख सकते हैं आप कि क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया और इनटू क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ लिख देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया A इनटू लेंथ L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं जानते हैं लेकिन लेंथ कितना लिए हैं, NL। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखेंगे कि A डैश इक्वल टू हो जाएगा AL बाई NL। L से L कैंसिल, मीन्स A डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा A बाई N। ठीक है, अब R का जो वैल्यू आप जानते हैं वो है रो L बाई A, एंड R डैश का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा NL अब बाई A डैश। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा रो NL बाई A डैश कितना निकाले हैं, A बाई N। ठीक है, तो यानी कि R डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रो N स्क्वायर रो L बाई A, और रो L बाई A जो है वो R है, यानी कि R डैश इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल गया हम लोग का R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। अब कोई भी बार को डबल स्ट्रेच कर दे, डबल कर देगा तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम। मान लीजिए कि कोई दे दिया कि R, क्वेश्चन दे दिया कि अगर अब तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे स्क्वायर कर दीजिएगा कि R का वैल्यू आपका दे दिया 2 ओम, अब बोला कि हम इसको 3 टाइम से स्ट्रेच कर दे रहे हैं, मतलब लेंथ जो है वो 3 टाइम से स्ट्रेच कर दे रहे हैं। 3 टाइम से स्ट्रेच कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। तो पहले 2 ओम था, अब रेसिस्टेंस कितना हो गया, 18 ओम हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी वो कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला तो आप लोग को वही यूज करना है जो बहुत अच्छा फॉर्मूला बताए हैं, I इक्वल टू ANEVD। इसको तो भूलिएगा ही नहीं, जब रामबाण है ये। A क्रॉस सेक्शन एरिया, A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट, वॉल्यूम, E चार्ज है और VD डिफिशिएंसी है, यूनिफॉर्म होता है। तो A लिख दीजिए NE, और VD को यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं EM बाई क्या, EM बाई M E बाई M इंटू टाउ। किसके बदले में आया, VD के बदले में आया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए कि A आप पढ़े होंगे कि E इक्वल टू होता है dV बाई dr, तो हम यहाँ पर सिंपली V बाई L लिख रहे हैं। तो A हो गया NE स्क्वायर हो गया, A को ये V को E को क्या लिख रहे हैं, V बाई L, ये तो टाउ होगा ही, ये M होगा ही। अब देखिए I बाई A को हम लोग क्या करते हैं, I A को J करते हैं, तो I बाई A हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर बाई M। ठीक है, NE स्क्वायर बाई M, और इनटू क्या लिखेंगे हम, आप लिख सकते हो V बाई L, और इनटू क्या, टाउ। अब एक बात ध्यान देंगे हम लोग को क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है। तो रेसिस्टिविटी निकालना है तो हम इसको ऐसा क्यों नहीं कर दे कि हम इसको V को भी इधर ले आते हैं, रेसिस्टिविटी हमको निकालना है, इसीलिए है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टिविटी निकालना है हम लोग को। ANE स्क्वायर ML, तो ML और टाउ, V तो इधर लेके चला है। अब जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो अगर हम I बाई V लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R हो जाएगा। इसमें क्या है, तो ये 1 बाई R हो गया। 1 बाई R इक्वल टू AL को अपने साइड में कर लीजिए। ठीक है, तो बचेगा NE स्क्वायर बाई M इंटू टाउ। अब देखिए, अब फॉर्मूला आप लगाते हैं क्या, रेसिस्टिविटी का जो अब हम लोग लिखते हैं कि R इक्वल टू लिखते हैं रो L बाई A, तो रो इक्वल टू क्या लिखते हैं, RA बाई L, यही लिखते हैं ना। तो अगर हम इसको ऐसा करें कि इस फॉर्मूला को RA बाई L लिखना चाहें हम, तो इसको रिवर्स करना होगा, M बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ, और इसी को हम रेसिस्टिविटी कहेंगे, M बाई NE स्क्वायर टाउ। देखिए बड़ा कमाल का रिलेशन आया, ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा हम लोग को।
m कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, मतलब ये मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, मतलब कैसा मटेरियल, जितना इसका ज्यादा वैल्यू होगा रेसिस्टिविटी उतना ही कम होगा, और जितना इसका कम वैल्यू होगा रेसिस्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। ई भी कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म है टाउ। टाउ क्या पढ़ाए थे? रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? ये एक्चुअल में डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, और मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, जैसी कोलिजन ज्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब समझिए इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक है ये, एकदम अंदर की। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, व्हेन टेम्परेचर rises then kinetic energy increases and collision more frequent, ज्यादा तेजी से होगा, more frequent means relaxation time decreases, and resistivity increases, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। ये देखिए सारा स्टेप बाय स्टेप समझिए। हम इसको एरो के फॉर्म में बनाते हैं कि अगर टेम्परेचर राइज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी राइज करेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जो समझ गए वो समझ गए। इसका मतलब एरो का मतलब टेम्परेचर राइजेस, और इसका मतलब इसका मतलब तो राइज होता है, और इसका मतलब डिक्रीज कह दीजिए। तो हम टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, किसी का भी बोलेंगे कि ये ऊपर एरो देंगे इसका मतलब राइज कर रहा है, और नीचे एरो देंगे मतलब फॉल कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी इसको मान लो, या फॉल कर रहा है। राइज लिखें तो फॉल कर देंगे, इसको इंक्रीजेस कर दीजिए तब ज्यादा अच्छा रहेगा। एरो को इंक्रीजेस। अब देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराइएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम घट गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेसिस्टिविटी बढ़ गया, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये हुआ फैक्टर्स, किन फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर का भी इक्वेशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर का एक इक्वेशन है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। लिख भी सकते हो यहां से, और आर को भी लिख सकते हो, और 1 प्लस अल्फा डी टी। ये जो अल्फा है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये इक्वेशन है, इससे को भी आप देख सकते हो, है ना। एक और बात, रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है टाइम के साथ। एक ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा ये याद आ गया, ये टेम्परेचर है रेसिस्टिविटी, ये डिक्रीज करता है टाइम के साथ। ये ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का है, किसी और का मत समझ लीजिएगा। बाकी का राइज करता है, कंडक्टर वगैरह का राइज करता है। एलओआई का लगभग कांस्टेंट रहता है, ये सेमीकंडक्टर का है। एलओआई का कहीं बना देते हैं, कहां बना दें, जगह कहां है, यहाँ। एलओआई का लगभग इस तरह से कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर और वर्सेस रेसिस्टिविटी। ये हो गया एलओआई का। और एक होता है कंडक्टर का, तो कंडक्टर का इंक्रीज करता है, कुछ ऐसा जाएगा, इंक्रीज करेगा रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कंडक्टर का। एक बार माइंड में आ गया तो हम बता दिए तीनों का।
पहला कंडक्टर इंक्रीज करेगा, एलओआई का लगभग कुछ के बाद ये कांस्टेंट रहता है, और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बढ़ता है, जिसके कारण से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। बस इतना ही रीजन है, और बाकी चीज में तो आप लोग समझ रहे हैं। मतलब रेसिस्टिविटी does not depend upon shape and size, resistivity depends upon the material, resistivity depends upon the temperature। इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम समझा दिए। अब इसमें हम लोग आ रहे हैं कि कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी तो पढ़ लिए हम लोग, तो कंडक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा, यानी यूनिट की बात करेंगे इसको। एक और है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको जी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड आप लगा लीजिएगा, हम केवल ये लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं 1/r। ये हो गया आपका कंडक्टेंस। इसका यूनिट की बात करेंगे तो ये महो होता है, इसका यूनिट महो, यूनिट क्या पढ़िएगा, महो। महो को हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं, ओम को उल्टा कर दीजिए ऐसे, महो। या एक और है साइमन, साइमन का साइंटिस्ट के नाम पे है ना, एस, स्मॉल एस यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा, बार बार समझाते हैं। साइमन इसका क्या हो जाएगा जब ये, तभी महो, इसका यूनिट जो हो जाएगा महोमीटर, महो पर मीटर हो जाएगा, महो पर मीटर ऐसे। और सिंबल में लिखिएगा तो थोड़ा सा कष्ट होता है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, लिखना तो है ही ऐसे। या साइमन पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ। ये हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब J इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है, ये ही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये फॉर्मेट, इसको हमको लाना है। कैसे लाएंगे? तो ये तो रामबाण, इसको तो एकदम याद करने का है। I इक्वल टू ए एनी VD को एकदम मत भूलिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि I इक्वल टू एनी VD बहुत कुछ दे के जाएगा। तो I/A लिख दीजिए, इसको लिख दिए, इधर कर दिए इसको NE, और VD को तो E/m इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, टाउ लिखते ही हैं। एक फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा जो हम भी भूल जाते हैं बहुत बार। रो का जो वैल्यू है अभी हम लोग निकाले थे कि m/ne² इंटू टाउ लिखे थे ना, यानी कि सिग्मा का जो वैल्यू हो जाएगा ne² टाउ बाई क्या हो जाएगा m। ये फॉर्मेट को तो हमको याद रखना होगा। तो I/A क्या हो गया, J हो गया, और इसको आप लिखेंगे ne² E/m, और क्या लिखेंगे टाउ। अब देखिए ne² टाउ बाई m, ये सब क्या हो जाएगा ne² टाउ सी, ये नहीं हो गया सिग्मा, यानी कि J इक्वल टू क्या हो जाएगा ne² बाई m इंटू टाउ, टाउ कभी नहीं देते हैं E, तो इसको आप सिग्मा कहेंगे, तो सिग्मा हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा E। एकदम सिंपल हो गया, यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, मतलब करंट डेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन, total work done by the source of EMF. EMF is electromotive force and it is the potential difference in open circuit of cell, okay, where there is no current drawn by the cell। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है सेल के द्वारा, तो जो दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को ईएमएफ करेंगे। तो ईएमएफ के द्वारा जो वर्कडन होता है सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इसका यूनिट जो होता है वो आप वाट आवर में डिनोट करते हैं, इसको वाट आवर,
वाट आवर, ठीक है, और नहीं तो किलो वाट आवर, जनरली किलो वाट आवर ही कहते हैं इसको, किलो वाट आवर, ठीक है, और नहीं तो आप जूल तो है ही, तो स्टैंडर्ड यूनिट है जूल, तो जूल तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, कैपिटल जे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल टू सब चीज तो वर्क डन ही है, तो क्या बोलते हैं Q ही बोलते हैं। W इक्वल टू क्या लिखते हो, Q भी, तो W इक्वल टू Q ही मतलब इसको IT कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप भी IT या जो भी इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आते हैं पावर पे। पावर क्या है, पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क के जगह पे आप रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी ये भी लिख सकते हैं, है ना, कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी या प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब रेट होना चाहिए, एक वर्क डन होना चाहिए। तो पावर इक्वल टू जो लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, W/T, तो आप इसको लिखेंगे IT बाई टी, तो टी से कैंसिल, तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा IV, यानी कि पावर इक्वल टू आप जो लिख रहे हैं IV, ठीक। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब P इक्वल टू I इंटू V को भी IR लिखते हैं, सिंस V इक्वल टू IR, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इक्वल टू I²R, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। आप लिखते हो P इक्वल टू IV और I इक्वल टू क्या लिखोगे, V/R, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, V²/R। मतलब अब जो है इतना सारा फॉर्मूला हो गया आपका। और एक यहां भी आप लिख सकते थे कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये भी लिख सकते थे आप, इसीलिए पावर को वाट और टाइम को टी, तो वाट आवर हो गया। तो यूनिट जो पावर का हम लिखेंगे, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, है ना, क्या लिखते हो, वाट, W कैपिटल में, कैपिटल में क्या लिखेंगे W, और आप जो है जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड, तो आपको सुविधा होगा लिखिएगा। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला पे। चाहे एक और फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए यहाँ कि 1 किलोवाट आवर की तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम कन्वर्ट कर देते हैं कुछ। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000, वाट मीन्स जूल बाई सेकेंड, है ना, और आवर मतलब कितना, 3600 सेकेंड, मतलब 1 किलोवाट आवर जो है इसी को 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है यही आता है, यानी कि आपका हो जाएगा 3.6 10⁶ जूल, ये एनर्जी का यूनिट है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, जूल चाहे किलोवाट आवर ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए जो नहीं जानते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स, एक ऐसा न्यूमेरिकल समझिए कि अगर हम इस तरह के रेसिस्टेंस लेते हैं, 2 रेसिस्टेंस लिए, सीरीज में ही ले रहे हैं, अब सीरीज पैरेलल तो आप जानते ही होंगे, ये भी हम कंसीडर करके चल रहे हैं। इसमें 1 ओम है, इसमें 2 ओम है, और इसमें एक ऐसा बनाते हैं, सेम केस लेंगे, यहां भी 1 ओम लेंगे और 2 ओम लेंगे, ठीक है, और इसमें एक सेल लगा दिया आपको। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सा फॉर्मूला कब कहां इस्तेमाल करेंगे। जैसे P इक्वल टू I, एक पहला मिसकंसेप्शन है कि ये फॉर्मूला इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा फॉर्मूला सब कुछ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुविधा होता है। जैसे अब यहां मान लीजिए कि 6 वोल्ट यहां भी दे दिए, 6 वोल्ट यहां भी दे दिए, अगर ये पावर P1 कंज्यूम कर रहा है और ये पावर P2 कंज्यूम कर रहा है, तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि I है, तो आप लोग सीरीज में देख रहे हैं, तो 1 + 2 बराबर कितना ओम होगा, 3 ओम, तो करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू आप जानते हैं V/R, तो V कितना है 6/3, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर करंट हो जाएगा इसमें, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि पावर जो हो जाएगा आप इसको लिखेंगे I²R। I क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि दोनों रेसिस्टर में करंट I ही है, लेकिन खैर हम दोनों से निकाल के आपको दिखा देंगे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस 3, तो कितना आ गया ये आंसर आ गया 12 वाट।
चलिए कोई बात नहीं। अब हम ऐसे निकालते हैं वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है 6 गुना 6, अब आर कितना है 3। देखिए तो इससे भी तो आ रहा है 12 वाट ही आ रहा है, तो कहाँ डिफरेंस है फॉर्मूला में। चाहे आई स्क्वायर, लोग कहता है कि सीरीज में रखिए तो ये फॉर्मूला लगाइए, पैरेलल में रखिए तो ये फॉर्मूला, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम P1 निकाले, सपोज दैट P1 निकाले, तो P1 चूंकि करंट दोनों में सेम है, इसलिए आई स्क्वायर आर लगाना ज्यादा सुविधाजनक है। ये कहने का मतलब है कि यहाँ तो 2 ही हम लिख दिए, तो 2 2 1 बराबर 4 वाट, ठीक है। और अगर हम P2 निकालते हैं तो आई स्क्वायर आर फिर इस्तेमाल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू कितना हो जाएगा 2, मतलब 8 वाट। अब देखिए तो दोनों को हम जोड़ दे तो पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू 12 वाट नहीं आ गया। बात तो उतना ही है, तो ये कोई जरूरत नहीं है। और एक्चुअल में सच पूछिए तो अगर हम आई भी लगा देना तो पावर उतना ही आएगा। देख लीजिए, पावर को हम आई भी लिख दे, आई कितना निकाले हैं 2 और कितना है 6, देख लीजिए 12 वाट। मतलब हम हर फॉर्मूला लगा दिए इसमें। क्वेश्चन सोल्व। इसमें भी आइए, इसमें जो आप लिखिएगा आरपी, तो 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2, मतलब कितना 2 बाई 3, इतना ओम आया, ठीक है। करंट निकाल ले, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट आएगा, टोटल करंट हम निकाल रहे हैं तो V बाई आर। अब देखिए यहाँ आरपी पुट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ही परेशानी का चीज बन जाता है कि अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत चीज सीखना है इसमें आप लोग को। 9 एम्पियर, अब देखिए इसमें 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें मात्र 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप पहले समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट का वैल्यू कम आ गया, करंट का वैल्यू कम आ गया। इसमें रेसिस्टेंस 2/3 है, मतलब लेस देन 1 है। लेस देन अगर 1 है तो उसका जो है 9 एम्पियर करंट आया। एनीवे, अब देखिए, अब चाहे आप फॉर्मूला इसको आप P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, हम निकालते हैं P1 P2, ठीक है। तो P1 निकालते हैं तो कितना आएगा, हम V स्क्वायर बाई आर से भी निकाल सकते हैं। तो V कितना है 6 इंटू 6 बाई 1, तो कितना हो गया ये 36 वाट, ठीक। P2 निकालते हैं तो P2 भी क्या लिखेंगे V स्क्वायर बाई आर, तो 6 इंटू 6 बाई कितना लिखेंगे 2, तो ये कितना हो गया आपका 18 वाट। अब दोनों को जोड़ दीजिए, P को P1 प्लस P2 को, तो कितना आ गया ये 54 वाट, है ना। 36 प्लस कितना 80 बराबर 54 वाट। चलो ऐसा नहीं निकालते, हम ऐसे निकालते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकालते हैं। आई कितना निकाले हैं 9 इंटू 9, और आर का वैल्यू कितना, आर माने आरपी, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि आरपी लिए हैं तो 2/3, 3 3 या 9, तो यहाँ 54 वाट नहीं आ गया। अरे किसी से कुछ से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई भी निकाल लीजिए, आई कितना लिखे थे 9, 54 वाट नहीं हो गया। इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखिए कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। हाँ, एक बात है कि अगर P1 और P2 को कंपेयर करना होगा तो हमको करंट तो मालूम है कि दोनों में करंट सिंपल होगा। तो इस केस में देखिए, इस केस में आप देख रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कब, जब I कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा। अगर आप इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे हैं तो, और यहाँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, कब, जब V कांस्टेंट है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, V कांस्टेंट कब होता है, तो पैरेलल में होता है। यही कंफ्यूजन सब लोग को डाल देता है, और इस सीरीज में होता है। चूंकि I कांस्टेंट रहेगा तो P 2 रेसिस्टर ले रहे हैं और 2 रेसिस्टर सीरीज में है, तो I कांस्टेंट है। I कांस्टेंट है तो आपको सुविधा है कि डायरेक्टली समझ लीजिए कि किसका, आप समझिए पहले कि अगर I कांस्टेंट है तो R कौन है, R ये 2 ओम वाला है, तो P1 क्या है 8 वोल्ट या 8 वाट, ये क्या है 4 वाट, तो नहीं हो गया। यहाँ पे ये रिलेशन नहीं निकल गया कि R ज्यादा था P ज्यादा, P R कम था P कम, R ज्यादा तो P ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ देखिए ये V कांस्टेंट है, तो P1 कितना है 36 और P2 कितना है 18। यहाँ P2 में R ज्यादा है तो P2 क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ R कम है तो P1 क्या ज्यादा हो गया। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो आप मान के चलिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर करंट अगर कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बस इतना ही बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाई देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स, जो भी लिखो यार। तो इसमें क्या कीजिएगा कि एक रेसिस्टर लीजिए, बहुत सिंपल है, जो आप पढ़ चुके हैं, एंड टू एंड कनेक्शन या जो भी आप कर लीजिए। इसमें आपको एगो सेल लगा देना है, ठीक। इसमें बटेगा क्या, आप लोग को पता है, करंट सब में क्या होगा, सेम होगा, है ना, करंट सेम, कोई अब ज्यादा हम भाषणबाजी नहीं करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। भी तो भी बटेगा तो जोड़ दीजिए, भी को जो बट रहा है उसको जोड़ दीजिए। अब बाकी कैपेसिटेंस में हम सब पढ़ा चुके हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं। आई एस तो आई इंटू भी तो R1 प्लस R2 एंड डॉट डॉट RN, ठीक। आई कैंसिल हो जाएगा तो RS इक्वल टू क्या लिखिएगा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन RN, सब सेम, बस केवल रेसिप्रोकल फॉर्मूला होगा, थीम सेम होगा, NR, जहां N क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर। तो दो बात, एक करंट सेम होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, और एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट, बस और कुछ नहीं। एंड टू एंड कनेक्शन और करंट सेम होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पे याद कीजिए ये CS जो था ना, वो वहां जो CS लिखे थे वो रेसिप्रोकल में था। ये अगर 1/CS लिखेंगे तो वहां था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन मन में है कि ऐसा क्यों। तो और CS लिखे थे, CS इक्वल टू C/N लिखे थे, ऐसा क्यों? तो देखिए वहां फॉर्मूला था Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू था Q/V, है ना, और यहाँ क्या है, V इक्वल टू IR, समझिए बात को। और हम लोग निकाल रहे हैं R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो इसमें जो फॉर्मूला है, C में जो फॉर्मूला है, V नीचे है, और R में फॉर्मूला है जो V ऊपर में है। देखिए R ये है, तो R जो है, R तो लिखो इसको यार, R जो है, R के न्यूमरेटर में V है और I है, और यहाँ देखिए C यहाँ है, V नीचे है, इसलिए ये रेसिप्रोकल हो गया, और कोई बात नहीं है, बाकी सब कंसेप्ट सेम है। पैरेलल में वही चीज लेंगे, एक रेसिस्टर यहाँ ले लीजिए, एक रेसिस्टर और ले लीजिए, एक रेसिस्टर और ले लीजिए। हमको एक टॉपिक और बचा हुआ है मेरा, वो हो जाएगा तब समझेंगे कि आज का काम खत्म हुआ। एक सेल लीजिए, ठीक है। तो अब आपका R1 है, R2 है, R3 है, RN है, ठीक, और ये भी है। आप जानते हैं कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, सब में करंट बटेगा, किसी में I1 जाएगा, किसी में I2 जाएगा, किसी में I3 जाएगा, किसी में बट कौन रहा है, करंट। जो बढ़ता है उसी को जोड़ दीजिए, बस इतना ही तो बोलते हैं कि जो बढ़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, सिंपली, कुछ करना थोड़ी, जो बढ़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R, तो RP लिख दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 एंड डॉट डॉट V/RN, है ना। तो 1/RP इक्वल टू लिखिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन 1/RN। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये बात एकदम। जिससे कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट A और पॉइंट B, तो प्रत्येक रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VA माइनस VB है। अगर ये समझ गए हैं तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड मोर रेसिस्टेंसेज आर कॉमन, देन द कॉम्बिनेशन शुड बी पैरेलल, ठीक है। तो ये और बाकी जो कंसेप्ट बताए हैं वायर पकड़ करके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो यहाँ भी वैलिड होगा, यहाँ भी उसको फॉलो कीजिएगा। अगर दो रेसिस्टर ले रहे हैं, मान लिया जाए कि दो रेसिस्टर ले रहे हैं, तो दो में क्या लिखिएगा आपको पता है, RP इक्वल टू क्या लिखिएगा,
R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और 3 रहेगा तो क्या लिखिएगा, Rp इक्वल टू लिखिएगा R1 R2 और R3, और ये लिखिएगा R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस कितना R1 R3। एकदम सिंपल है, जिसे पढ़ चुके हैं आप लोग, याद हो जाएगा आप लोग को, है ना, कोई बड़ा भारी फॉर्मूला नहीं है। और अगर n आइडेंटिकल रहेगा तो Rp को R बाई n लिख दीजिएगा बस। कार्बन रेसिस्टर जो होता है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, हम फोकस करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये कार्बन ये है और इसमें 4 बैंड है और ये लेड वायर है, दोनों साइड में क्या है, लेड वायर, और ये बीच में क्या है, कार्बन मटेरियल का ही बना हुआ है जो कोटेड होता है कुछ से, ठीक है। तो इसी का रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बार बार मल्टीमीटर से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीमीटर नहीं हुआ तो इसको हम रीड कैसे करेंगे कि कितना ओम का ये रेसिस्टेंस है। तो उसके लिए एक कलर कोड का पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है, तो अगर हम ऐसा मान लें, ये कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है, इस तरह का, आइए लीड वायर, दिस इज द लीड वायर, लीड वायर, ठीक। इधर भी इसमें 4 बैंड बना होता है। कैसा बैंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेड कलर का बैंड, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा रेड कलर का, ठीक। और ये मान लेते हैं कुछ ब्लैक कलर का बना, ये ब्लैक कलर का, ठीक। कुछ मान लेते हैं ये ब्लू कलर का बना ऐसे, ठीक। और एक व्हाइट कलर का मान लेते हैं, व्हाइट कलर का मान लेते हैं ऐसा। व्हाइट होता नहीं है, लेकिन हम इसको सिल्वर कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, सिल्वर, ठीक है। और ये तो रेड आप देख ही रहे हैं, ब्लैक है, ये रेड है, ब्लैक है, 4। लेकिन कैसे याद रखेंगे, किसका कितना वैल्यू है, कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक टर्म बना है कि बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी, पता नहीं कौन है ये, हमको नहीं मालूम, किताब में दिया हुआ है ऐसा टर्म तो हम बना दिए, और कुछ है नहीं। तो इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, इस सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले ये कलर है, तो आप लोग समझ रहे हैं, जो कोड है कलर का, तो बी बी हम लिख देते हैं पहले RO बाई, ठीक है, BB RO बाई, BB RO बाई, फिर G लिखिए, G, उसके बाद B लिखिए, उसके बाद V लिखिए, तब G और तब W, ठीक है। इतना ही अभी लेके हम चलेंगे, है ना, थोड़ा सीधा बना लीजिए, ठीक है। अब समझिए इस बात को, क्या समझना है, ये कलर, यहां तो हो गया ये कलर कोड, कलर कोड इसको कहिएगा, आइए हो गया कलर, यहां हम लिखेंगे कलर, और ये होगा आपका मल्टीप्लायर, नहीं मल्टीप्लायर तो बाद में, ये डिजिट बोलते हैं इसको, डिजिट, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और ये आपका टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए शुरू कीजिएगा ब्लैक से, B फॉर ब्लैक, ब्लैक, उसके बाद है ब्राउन, ठीक है, उसके बाद है रेड, उसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद है येलो, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है वायलेट, और तब ग्रीन, ग्रे है ये, और तब ये व्हाइट। ऐसा कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मल्टीप्लायर 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। टॉलरेंस अगर गोल्ड रहे, ये पोर्शन गोल्ड, तो 5%, अगर सिल्वर होगा, मान लीजिए इसमें पेंट क्या होगा, सिल्वर रहेगा, तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं, नो कलर हो, तब यहाँ पे 20%। अब क्या है सब समझाते हैं। एक तो पहले ही कोड वर्ड आपको हमको जानबे करते हैं,
हम याद करने में सबसे कामचोर स्टूडेंट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तरीका से याद हो जाता है। अब देखिए यहाँ ब्लैक है, बहुत डार्क कलर, ब्लैक के बाद ब्राउन, थोड़ा कम डार्क, रेड थोड़ा कम डार्क, इस तरह से देखिए इंटेंसिटी लाइट का धीरे धीरे घट रहा है और कहाँ तक आया, व्हाइट तक आया। तो याद करने में पहला हेल्प ये देगा, और ये जो सेंटेंस आप याद कर लीजिएगा जो कैपिटल में लिखा हुआ वो सब, ठीक है। अब बस वैल्यू निकालेंगे, लेट हो रहा है। तो रेड किस टर्म में आ रहा है, इसमें आ रहा है रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक। तो रेसिस्टेंस जो होगा डिजिट बनेगा ए बी से, मल्टीप्लायर होगा सी से, और टॉलरेंस होगा प्लस माइनस डी होगा जो परसेंटेज में होगा, और सब वैल्यू मिला करके इसको हम लोग ओम बोल देंगे। जनरल फॉर्मूला हो गया। अब कैसे बोलें, देखिए ए क्या है, रेड कहाँ है, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी में क्या है, ब्लैक, तो 0 लिख दीजिए। सी क्या है, सी में आ रहा है ब्लू, तो ब्लू कहाँ है, ब्लू में आता है 10⁻7, तो 10⁻7 हो गया। और प्लस माइनस ये क्या लिए थे, सिल्वर में 10%, तो 10%, मतलब ये वैल्यू आपका जो रेसिस्टेंस लिए हैं उस रेसिस्टेंस का वैल्यू इतना आया। तो दिस इज द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, मींस कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस का वैल्यू पढ़ना सिखाता है।